Good morning, everyone. So, in our last class, we were discussing about the number of ways you can characterize a two-port network. Okay. So, and I actually leave you at with a statement that a two-port network can be characterized in a two-port network can be characterized in 6 different ways. In general, an n-port network can be characterized in n square cn different ways. Okay, so you can now understand if n is equals to 2, then n square is 4c2. So for a two-port network, you have it in this way, 4c2. Fine. And what is 4c2? It is actually 6. You have 6 different ways in which you can characterize a two-port network. There are 6 different ways in which you can characterize a two-port network. नीतेश, आपका सवाल जो है म्यूचुअल इंडक्टेंसेस से है, अभी आपने जो टाइप किया है इन चैट बॉक्स. Regarding the mutual inductances, so I would take your question a bit later. Let me first finish this, okay? I hope you won't mind. And that I can see is regarding your DHA as well, which was DHA 10. Don't worry about that. I'll take your question as well. So we have 6 different ways to characterize a two-port network. Kaise? I will tell you. We have V1, V2, I1 and I2 are the only port variables, right? Port voltage and port currents. और फॉर्म किस तरीके की आएगी? आपको पहले बताया था कि two of the variables will be on the left side and then two of these variable will be on the right side. It can be in a different way as well. For example, I can have I on right side and V on left side. I can have V1 and I2. I can have I1 and V2, and there are all different ways I can have. ठीक है? तो ये जो 6 पैरामीटर्स या 6 तरीके, ये 6 तरीके हमारे पास कैरेक्टराइजेशन के होंगे, इनमें से 2 तरीके इमिटेंस के होते हैं. इमिटेंस मतलब जिसे हम Z या Y पैरामीटर बोलते हैं, एडमिटेंस या इंपीडेंस. 2 तरीके हाइब्रिड पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम H पैरामीटर या G पैरामीटर बोलते हैं. ठीक है? और 2 तरीके कैस्केड पैरामीटर के होते हैं जिसे हम चेन पैरामीटर भी बोलते हैं, या कैपिटल ABCD
या स्मॉल एबीसीडी पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या बोल दिया सर, वाई जेड पैरामीटर, एच जी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, इसे हम लोग एक एक करके तकरीबन 5 से 6 क्लास में कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज का काम हमारा है दो तरीके, y और z पैरामीटर्स को समझना, y और z पैरामीटर्स को पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस पिक अप z पैरामीटर्स। तो एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, उसमें हम z पैरामीटर्स को कैरेक्टराइज करना चाहते हैं या z मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं। तो z मैट्रिक्स का क्या तरीका है इन अ 2 पोर्ट नेटवर्क। तो अगर हमारे पास on the left hand side is voltage V1 and V2, which is written as some constant Z11 I1 plus Z12 I2 Z21 I1 plus Z22 I2। ठीक है, तो when you write excuse me, so when you write 2 port parameters in this form, you call it as Z parameter. This is one way out of the 6 ways in which you can characterize a 2 port parameter. इन 6 में से एक तरीका है जिसमें हमारे पास Z11, Z12, Z21, Z22 है। ठीक है, अब इन Z पैरामीटर्स की डेफिनेशन क्या होगी, फिजिकल मीनिंग क्या होगा। तो आप देखिए V1 अपॉन I1 एट I2 इज इक्वल्स टू 0, यानी अगर पोर्ट 2 का करंट 0 कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, दिस विल नॉट बी देयर। देन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑफ पोर्ट 1 इज इक्वल्स टू Z11। ठीक है, when I2 is made 0, the ratio of voltage 1 and current 1, or the voltage and current of port 1 will give you what is called as Z11। और क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो Z11 है ये ड्राइविंग पॉइंट है या ट्रांसफर है। ये तो पता चल गया, ड्राइविंग, इट इज अ वोल्टेज एंड करंट का रेशियो, सो इट इज डेफिनेटली ड्राइविंग पॉइंट, जिसका आंसर था दैट वाज करेक्ट। इसी तरीके से व्हाट अबाउट V2 अपॉन I1, सॉरी यस, सो V2 upon I1 at I2 equals to 0 is also equals to Z21, okay, is also equals to Z21। तो जब I2 0 हो but I am taking ratio of voltage across port 2 and current at port 1, then that is called as Z21 and it is a transfer impedance। Similarly, you can have V1 upon I2 at I1 equals to 0 is equals to Z12 and V2 upon I2 at I1 is equals to 0 is equals to Z22। So these are what is called as definition of Z parameter। आप पोर्ट 1 का करंट 0 कर दीजिए और फिर रेशियो लीजिए, आप पोर्ट 1 का करंट 0 कर दीजिए और फिर रेशियो लीजिए V1 और I2 का, यू विल गेट Z12। या फिर आप रेशियो लेते हैं V2 और I2 का, यू विल गेट Z22। दिस इज द डेफिनेशन। एक चीज यह नोट करने वाली है वो ये कि इन सभी पैरामीटर्स में द करंट इज गोइंग टू 0, या तो वो पोर्ट 1 का करंट है या पोर्ट 2 का करंट है, बट दिस करंट इज गोइंग टू 0।
अगर किसी सर्किट में करंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो कौन सा सर्किट कहलाता है, ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? बताइए, इफ करंट इज 0 इन अ सर्किट क्या कहलाता है, ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? इट इज ओपन सर्किट। यही कारण है कि Z पैरामीटर्स को, यही कारण है कि Z पैरामीटर्स को ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी कहा जाता है। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक मैट्रिक्स ZOC से, विच मींस इट इज एन ओपन सर्किट पैरामीटर ZOC, और इसमें आप Z11, Z12, Z21 और Z22 लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ Z पैरामीटर। ठीक है, now it depends what is the variable which you can treat independently। तो देखिए, जो भी पैरामीटर या हम कहें जो भी I1, I2, V1, V2 में से ऑन द राइट साइड रहेगा, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, और जो लेफ्ट साइड है, जो ब्राउन में लिखा है मैंने, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है। तो ये हमें पता करना होता है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने Z पैरामीटर्स लिखे, इसकी डेफिनेशन अभी आप या जो फॉर्मुलेशन हमने किया है, इसे किसी एक अच्छी सी जगह नोट कर लीजिए, बिकॉज यू विल रिक्वायर इट वेरी ऑफ्टन। in the same way, in the very same way, you can have Y parameters. Okay, so suppose I was not having V1 and V2, but I was having I1 and I2 with me, then this is Y11 V1 and Y12 V2. This one is Y21 V1 plus Y22 V2. Okay, it's like this. Now you can see, if I have to define what is Y11, you can simply see that if I fix V2 equals to 0, so if I fix V2 equals to 0, then the I1 upon V1, okay, at V2 equals to 0 is equals to Y11. Similarly, I can write I2 upon V1 at V2 equals to 0 is equals to Y21. Similarly, ऐसे ही Y1 upon V2 at V1 is equals to 0 is equals to Y12, and Y2 upon V2 at V1 is equals to 0 is equals to Y22. अब आपने नोटिस किया होगा कि ये वाला जिसमें इंडिसेस सेम है, Y11 एंड Y22, ये एडमिटेंसेस है। V अपॉन I की बजाय I अपॉन V है, यानी रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसीलिए हम इन्हें एडमिटेंस पैरामीटर भी बोलते हैं या Y पैरामीटर भी बोलते हैं। तो ये हुई आपकी पूरी सारी डेफिनेशन ऑफ Y पैरामीटर्स। और क्योंकि आप देख रहे हैं determination of each of these Y parameters require some voltage to go to 0, and if in a circuit you have voltage equals to 0, if in a circuit you have voltage equals to 0, what type of a circuit it is? तो आपके जवाब पूछने से पहले ही आने लगे that it is going to be a short circuit, correct? So this is going to be a short circuit, and this is the reason we also call Y parameter as short circuit parameter.
ओके y पैरामीटर एज शॉर्ट सर्किट पैरामीटर. अब देखिए ये हम y को i को राइट साइड में लिख रहे हैं या v को राइट साइड में लिख रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट मेनी थिंग्स. हाउ लेट मी जस्ट explain to you. If you have a function like y is equals to a function of x, okay, if you have something like this, ये y का impedance या admittance parameter से कोई लेना देना नहीं है. If you have a function like this, y is equals to fx, तो x आप चूज करते हैं या मैं कहूं x is independent variable और y जो है वो डिटरमाइन करते हैं या निकालते हैं. हम कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू पता चले एट पर्टिकुलर x. सो दिस y इज डिपेंडेंट ऑन x. दिस y इज डिपेंडेंट ऑन x. तो जो डिटरमाइन करना है उसे आप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और जो पता है जिसे आप चूज करना चाहते हो उसे आप राइट हैंड साइड रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल so it depends on these y, z, a, b, c, d, g parameter जो भी हमने आपको बताया अभी. What all possible ways we have, like दो इमिटेंस, दो हाइब्रिड, दो कैस्केड. इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चॉइस क्या है. क्या आपके पास दोनों करंट इंडिपेंडेंट है, क्या आपके पास दोनों वोल्टेज इंडिपेंडेंट है. इट डिपेंड्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से a transformer in which we have a primary coil and let's say a secondary coil. So this is a transformer. We can have the lamination right here. Okay. So in a transformer, you know that V1 is equals to some n times V2 क्योंकि V1 upon V2 का ratio is the turn ratio. आपको बताया था ideal transformer case में. And also I2 is equals to minus n I1. अगर आपको transformers याद हो तो ये भी याद होगा that n is equals to V1 upon V2 is equals to minus I2 upon I1. ठीक है, ये मैंने बताया था आपको पहले ही. तो अब आप इनमें ये समझ गए होंगे that V2 और I1 are independent. यानी V2 multiplied by something is V1, I1 multiplied by something is I2. तो V2 और V1 और I1 को चूज करेंगे एज इंडिपेंडेंट और V1 और I2 विल रिमेन डिपेंडेंट. हालांकि इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं V2 is equals to 1 upon n V1. Yes, definitely, but provided this n was not 0. So there are many things which you should keep in mind while writing these things. So एक और आर्ग्यूमेंट है दैट ये चूज करने का तो तरीका देख लिया और अभी हमने केवल I1, I2 और V1, V2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड रखकर देखा है. एक आर्ग्यूमेंट है दैट योर Y शॉर्ट सर्किट मैट्रिक्स विच वुड बी व्हाट, जो कि हमारी होगी Y11, Y12, Y21, Y22, Y11, Y12, Y21, Y22. दरअसल YSC एक सर्किट के ZOC इनवर्स के बराबर होगी. तो मेरे पास एक सर्किट दिया हुआ है, उसको मैं Z पैरामीटर निकाल सकता हूं, उसके ABCD, उसके HG, उसके Y पैरामीटर सब कुछ डिटरमाइन कर सकता हूं. अगर ZOC निकाल लिया तो ZOC का केवल इनवर्स निकालो, YSC अपने आप निकल जाएगा, प्रोवाइडेड ZOC इन्वर्टिबल होना चाहिए. ठीक है, यानी ZOC का डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए. अगर हम मैट्रिक्स को इनवर्स या इन्वर्टिबल बनाना चाहते हैं, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड नॉट बी 0 इन एनी ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, तो अगर कोई एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो दूसरी वाली भी नॉन सिंगुलर होगी. तो ये एक आर्ग्यूमेंट है. हम लोग इसे एग्जाम्पल से वेरीफाई करके देखेंगे. हम इसे एग्जाम्पल से वेरीफाई करके देखेंगे. ठीक है, although we cannot prove it right here, but
कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क जरूरी नहीं है कि उसके पास केवल एक ही तरीके से कैरेक्टराइजेशन पॉसिबल है कि केवल जेड पैरामीटर से निकाल सकते हैं, आप उसके वाई पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, उसी सर्किट के एच और जी पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, तो पॉसिबल है कि उसी सर्किट के आप एबीसीडी पैरामीटर भी निकाल दें। ओके फाइन, तो अब एक एग्जांपल है, हमें एक सर्किट दिया एक्सक्यूज है। मी सर, यस प्लीज पूछिए। सर आपने जो सिक्स वेज बताए थे सर, वो समझ में नहीं आया, वो सिक्स वेज क्या थे? अच्छा ठीक है, आई विल टेल यू। देखिए वेयर इट इज, हाँ देखिए, आप डिपेंडेंट किसे मानेंगे और इंडिपेंडेंट किसे मानेंगे, ये 6 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं, you can have v1 v2, this should be v2, sorry ये यहां मैंने थोड़ी गलती कर दी होगी, we can have v1 v2 as dependent, we can have i1 i2 as dependent। तो जब v1 v2 और i1 i2 डिपेंडेंट की तरह सिलेक्ट करते हैं उसे हम z या y पैरामीटर बोलते हैं। you can also write it in this form, let's say how can I say that, let me just give you what is called as my hybrid parameter. So I would just take it. Yes. So it is, you can take v1 and i2. तो जब v1 और i2 लेंगे then it would be something like h11 i1 plus h12 v2। तो आप देखिए i1 और v2 is missing। Similarly you can have h21 i1 and h22 v2। तो ये h पैरामीटर्स हुए, समझ रहे हो, हमने हाइब्रिड ले ली, केवल वोल्टेज नहीं लिया, मिक्स्ड ले लिया, तो इसे मिक्स्ड पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। इसी का एक और दूसरा तरीका भी है, इसकी की दूसरी फॉर्म है, क्या फॉर्म है वो, इसी की दूसरी फॉर्म है, इट इज रिटन इन दिस वे। सो यू कैन हैव i1 and v2, instead of having v1 and i2 you can have i1 and v2, and then you will have g parameter g11 v1 plus g12 i2। तो आप देखिए यहाँ पे v1 और i2 आ रहे हैं, पहले v1 and i2 are on this side। so these are different ways in which you can write these parameters। तो ऐसे 6 अलग अलग तरीके होते हैं, 6 different ways are there in this form। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन पैरामीटर्स भी होते हैं हमारे पास। how we can have transmission parameters? So transmission parameters आपको पहले बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, like it would take some basic understanding। For example, if you are having an n port or a two port network and you are sending in something, ठीक है, तो बाहर क्या आता है, इसे हम ट्रांसपोर्ट पैरामीटर बोलते हैं या ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं या कैस्केड पैरामीटर भी बोलते हैं, कि आप एक नेटवर्क के आगे कैसे दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, तो एबीसीडी चेन पैरामीटर या कैस्केड पैरामीटर बोलते हैं। तो देयर आर 6 different ways in which you can write these type of matrices which we have been writing since morning, yeah, since last 40 minutes you can say। fine, so is it clear Kunal? I mean you will get to know Yes sir. why are these 6 ways when you will attend all the 5 or 6 classes which are going to come in a row, perhaps this week's। नहीं सर, बस हम इसमें तो इतना कर रहे हैं कि yes, इसमें तो सर बस इतना कर रहे हैं कि कोई भी दो पेयर्स उठा रहे हैं हम, कि जैसे v1 v2 i1 i2 correct, v1 that's it, i1, इनको इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। that's it, and there are 6 ways, 6 different ways you can do that। यस सर। okay, that's it, इतना ही है। तो अब एक एग्जाम्पल लेना है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बताइए अगर ये एक सर्किट है, excuse me, फाइन। तो
ये एक सर्किट दिया हुआ है आपको जिसमें ये एक इंडिपेंडेंट नहीं कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, इसका वोल्टेज इस पोर्ट के वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द पोर्ट पैरामीटर एंड दिस इज अ कंट्रोल्ड सोर्स। व्हिच टाइप ऑफ अ सोर्स इट इज? इफ इट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज तो इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब हमसे कहा गया है that depending on what is there inside n, तो दरअसल हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है which was first packed in a black box n, or depending on the type of the circuit given to you, what you have to do is you have to determine the z parameters. तो z parameters निकालने हैं इसके। तो पहले हम थियोरेटिकली सॉल्व करेंगे एंड देन आई विल टेल यू कि ये थियोरेटिकली सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी अगर आपके पास मल्टीमीटर और एक वायर है तो आपको सब कुछ पता चल जाता है, जितने भी पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ट्राई टू सॉल्व इट थियोरेटिकली। सो थियोरेटिकली अगर मुझे जेड पैरामीटर्स निकालने हैं तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाइए, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर यू। जेड पैरामीटर्स में व्हाट वी राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? शिवानी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? No? Okay. In Z parameter, what do we write on the left hand side? It is the voltage V1 and V2. And on the right hand side, we write Z11 I1 plus Z12 I2, Z21 I1 plus Z22 I2. And in order to determine Z11, what I should do is I should take ratio of V1 and I1 provided I2 is 0. Similarly, for Z21, I should take ratio of V2 and I1 provided I2 is 0. So सबसे पहले इस सर्किट को हमें थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा अपने हिसाब से। कैसे? मान लीजिए कि I2 जो है वो 0 है और V1 पे मैंने कोई टेस्ट वोल्टेज लगाया है 1 वोल्ट की। ठीक है, I2 0 है तो ये सब कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो आई वुड बी लेफ्ट विद अ सर्किट व्हिच वुड लुक समथिंग लाइक दिस। I2 0 हो गया, so I am removing this I2 now. This is like this has been removed because I2 is 0. I will consider this as open circuit. It's gone, but V2 is there still. The voltage across this resistance of 3 ohms. Okay, और साथ में मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाई है of 1 angle 0 volts. So this is a test source of let's say 1 volts. तो एक्चुअली अगर ये साइनसॉइडल टाइप का होता या C या L लगे होते तो मैं यूज करता 1 angle 0, बट इट इज ओनली ऑफ 1 volts. अभी आप ऐसे मान लीजिए दिस सोर्स इज ऑफ 1 volts. अब हमें चाहिए क्या? हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है। यहां से जो करंट अंदर जाता है दैट इज I1. ठीक है, दिस इज V1, तो V1 मैंने फिक्स कर लिया है 1 वोल्ट, और V2 अब हम पता कर सकते हैं व्हाट इट इज गोइंग टू बी। तो आप इसके अंदर जो है मैश एनालिसिस लगा दीजिए। यू कंसीडर करंट IM1 एंड करंट IM2. फाइन? एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर वो इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट सोर्स है सर उसका वोल्टेज भी सर V2 मान लिया है। ये अच्छा मैं बता रहा Yes, हूँ, sir. इट इज एक्चुअली लाइक दिस 1.V2, तो V2 ही वैल्यू है उसकी, जितना भी वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ आएगा। सेम आएगा सर? हाँ, मतलब इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आएगा नहीं, कहा गया है कि जो भी वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ दिखेगा, बोला गया है। इट इज अ कंट्रोल सोर्स, तो वो तो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर लगा सकते हैं कि इट इज 5 + V2, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये कंट्रोल सोर्स है, इसको आपको एज इट इज कंसीडर करना पड़ता है। सो इफ दे से
that this voltage will be equal to the voltage, whatever the voltage will be across R2. You have to consider that. अपने आप नहीं लिया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है. ऐसा भी हो सकता था V2 by 3 हो Okay, sir. जाता. तो ये this is given in question. It is 1 dot V2 which is equals to V2 actually. तो अब इसमें मुझे आप पोर्ट की Okay, sir. इक्वेशंस बना के बता सकते हैं व्हाट विल बी द इक्वेशंस इन दीस टू meshes. So in these two meshes क्या इक्वेशन होंगी, क्या ये ऐसी होंगी 3im1 minus 2im2 is equals to 0 आएगा, 1 आएगा एक्चुअली, क्योंकि ये 1 एंगल 0 सोर्स लगाइए. एंड व्हाट अबाउट दिस वन, 3 plus 2 is 5, so plus 5im2 minus of 2im1 is equals to, now you know that it is going to be minus of V2 because this is a source. But you also know, साथ की साथ आपको ये भी पता है that V2 is nothing but is equals to my im2 multiplied by 3 ohm. 3 ohm into im2 is the voltage across this. तो इस V2 को मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, I can write it. तो जो फाइनल इक्वेशंस आएंगी इनकी वजह से, तो those equations will be 3im1 minus 2im2 is equals to 1. और यहां अगर मैं इस V2 की जगह पे im या 3im2 लिख दूं तो आपको क्या मिलेगा, दैट वुड बी -3, तो इधर आके प्लस हो जाएगा. तो आई वुड बी हैविंग देन -2im1 प्लस 8im2 इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन यहां से आई है यूजिंग दिस. क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप मुझे बता सकते हैं im1 im2 कितना होगा? चलिए, आई एम गिविंग यू 5-10 seconds. यूज कैलकुलेटर, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ im1 and im2. So you can simply use calculator, or you can do, this is not that tough as far as I can see. अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, then I'll be having 3 times 4 is 12. This would go, then I will be having 12 minus 2 is 10, so it would be 4 upon 10. 4 upon 10 is 2 upon 5. So im1 की वैल्यू should be 2 upon 5, है ना? So यहाँ से from there I can have my, let me use another page, let me utilize it right over here. So im1 की वैल्यू जो डिटरमाइन होके आई, that seems to be like something like 2 upon 5. और im2 अगर हम देखें so you can have it in this form. This is 6 upon 5. 1 minus 6 upon 5 is going to be nearly 2 by 20, which is im2 should be equals to 1 by 10, all in amperes. Let me just check. Yes, 2 by 5 and 1 by 10. So 2 by 5 is 0.4 and 1 by 10 is 0.1. Correct. So most of you have given me right answers. Now what we have to do is, we know that im1 is nothing but equals to i1. See, एक ही तो करंट है, im1 is equals to i1. im1 is equals to i1. So what about z11? z11 होना चाहिए v1 upon i1. और v1 हमने क्या सिलेक्ट किया था, v1 में क्या सिलेक्ट किया था, v1 सिलेक्ट किया था 1 वोल्ट. तो 1 upon 2 upon 5, so it is now going to be equals to, what will be z11? 5 by 2, because it is 1 upon 2 upon 5. So 5 by 2 ohms. You have got the value of z11. What about z21? z21 के लिए I have to first find out what is v2, और v2 क्या है, im3 into 3. So im2 क्या निकाला था आपने, 1 by 10. तो 1 by 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 by 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ 3 by 10. आई एम हैविंग v2 as 3 by 10, और इस 3 by 10 को किससे डिवाइड देना है, i1 से, which is 2 by 5. So your z21 is equals to what, your z21 is equals to 3 by 4. कैसे, आई एम हैविंग 3 by 10 and then I'm having 5 by 2. Fine. So this goes with this, and this is 3 by 4. So I'm having 3 by 4. So
Z11 पता चल गया जिसकी की वैल्यू 5/2 ओम है, और Z21 पता चल गया जिसकी वैल्यू 3/4 ओम है। ठीक है, ये ड्राइविंग पॉइंट है, ये ट्रांसफर है, दो पैरामीटर्स पता चल गए। अब इस सर्किट में मैं I1 को अगर 0 कर दूं तो बाकी के दो बचे पैरामीटर्स भी हमें मिल जाएंगे। नाउ आवर टास्क इज टू मेक I1 इक्वल्स टू 0। तो इस सर्किट में I1 0 करने का मतलब है कि ये वाला रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इट इज 0। सो फॉर I1 इज इक्वल्स टू 0, जैसे हमने I2 इक्वल्स टू 0 के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, I1 इक्वल्स टू 0 के लिए भी एक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, विच विल बी समथिंग लाइक दिस। और I1 जो आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, तो आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग। लेकिन अभी भी V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल। ठीक है, बिकॉज I1 इज 0, तो कोई करंट इस 1 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप नहीं हुआ, कोई वोल्टेज 1 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि करंट 0 था, लेकिन वोल्टेज इसके अक्रॉस विच इज 2 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। आई विल कॉल दैट एज V1। ठीक है, अब बस हमारे लिए कुछ और इक्वेशन सॉल्व करनी बचती हैं। तो वैसे तो आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, गौर से सुनिए, अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 है और इस कंट्रोल सोर्स का वोल्टेज V2 है, तो टोटल वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना दिख रहा है? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दरअसल वोल्टेज दिख रहा है दिस वन, यानी दिस वन प्लस दिस वन। तो हम ये कह सकते हैं दैट योर V1 इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V2। क्यों? एक V2 ये रहा, एक V2 ये रहा। और हमने क्या किया है, दरअसल एक 1 वोल्ट की टेस्ट सोर्स यहां V2 पे कनेक्ट कर दी है। फाइन, यहां V2 पे हमने एक टेस्ट सोर्स कनेक्ट कर दी है 1 वोल्ट की। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो V1 के अक्रॉस वोल्टेज है वो ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज है।